نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ محبت کو قبول کرنے سے انکار، ہم جماعت ساتھی نے معشوقہ کے پیٹ اور سینے پر چاقو گھونپ دیا، لڑکی ہلاک۔ منگلور میں امت شاہ کے پروگرام میں شرکت کر کے لوٹ رہے بی جے پی کارکنان پر حملہ۔ کنداپور میں حاملہ خاتون کے قاتل کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی۔ ملک دوراہے پر اور آگے کا راستہ کے عنوان سے جمعیت علماء ہند کا ایک اہم اجتماع۔ بی جے پی دہلی چیف سیکریٹری معاملے کو ہوا دے کر پی این بی گھپلے پر پردہ ڈال رہی ہے، سنہا کا بیان۔ میڈیکل رپورٹ میں چیف سیکریٹری کے چہرے کندھے پر ملے چوٹ کے نشان۔ پٹنہ میں پرائیویٹ یونیورسٹی کے ذریعے گھر بیٹھے ڈگری دینے کا پردہ فاش۔ جھارکھنڈ میں بیٹے کے علاج کے لیے لاچار ماں نے بیچ دیا 2.5 ماہ کا بچہ۔ مہاراشٹر سے خبر، 3 طلاق بل کے خلاف لاتور میں سینکڑوں خواتین کا احتجاج۔ مسلم ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ مسلم ہی رہنا چاہتی ہوں، ہادیہ کی سپریم کورٹ میں عرضی۔ پریا پرکاش واریئر کے خلاف مقدموں پر سپریم کورٹ کی روک۔ سادھوی پرگیا کی ہندوؤں سے اپیل، زیادہ بچے پیدا کرو، پرورش میں کروں گی۔ شکاگو میں امریکی شخص کی ٹرین کے اندر خودسوزی کی کوشش۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد کے بارے میں المناک تفصیلات۔ ایک ایسا عرب ملک جہاں خواتین کو شادی کے لیے مردوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر سلیہ سے ہے۔ سلیہ شہر سے ایک المناک واردات کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق محبت سے انکار کرنے پر ایک طالبہ کو یہاں اس کے عاشق نے دن دہاڑے چاقو گھونپ کر قتل کر دیا ہے۔ ملزم کی شناخت کارتک ولد چندرا شیکھر مقیم کیمراجے نیلور کے حیثیت سے کر لی گئی ہے، جبکہ مقتول طالبہ کی شناخت کاسرگوڈ ضلع کے ملیریا شانتی نگر کی مقیم اکشتا کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کئی دنوں سے لڑکی کو پریشان کر رہا تھا اور 2 دن قبل اس نے پیار کا اظہار بھی کیا، مگر طالبہ نے پڑھائی کے دوران اس طرح کے کسی بھی چکر میں پڑنے سے انکار کرتے ہوئے اسے دور رہنے کو کہا تھا۔ اس سے غصایا ہوا کارتک کل جب اکشتا درسگاہ سے تعلیم ختم کر کے گھر لوٹنے کے لیے بس اڈے کے قریب کھڑی تھی تو اتنے میں کارتک وہاں پہنچا اور پھر تیز دھار چاقو سے اس کے پیٹ اور سینے پر جملہ 6 وار کر دیے۔ حملے سے نیچے گری اکشتا اسپتال لے جانے کے دوران ہلاک ہو گئی ہے، جبکہ کارتک یہ واردات انجام دینے کے بعد وہیں کھڑا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ دن دہاڑے پیش آئی اس واردات کے بعد سلیہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول ہے اور بالخصوص طالبات کے والدین اس واردات سے متفکر نظر آ رہے ہیں۔ اب خبر منگلور سے۔ ایک بار پھر ساحلی کرناٹک کے منگلور کے قریب کل کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے۔ اطلاع کے مطابق اس وقت بی جے پی کے قومی صدر کرناٹک کے ساحلی اضلاع کے دورے پر ہیں، اسی کے چلتے یہاں کے مختلف علاقوں میں پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کل یہاں ملپے میں مچھواروں کے ایک اجلاس میں شرکت کر کے لوٹ رہے بی جے پی کارکنان پر کچھ شرپسندوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ یہ معاملہ کل رات بینگری نامی علاقے کے قریب پیش آیا ہے۔ اس حملے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن کی شناخت راہل، وپن، لوکیش اور عامر کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ حملے کے بعد کئی لوگ جمع ہونے پر ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کر کے بھیڑ کو منتشر کر دیا گیا، مگر اس بیچ کچھ پولیس افسران کو بھی چوٹیں پہنچی ہیں۔ پنمبور پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ پیشگی طور پر مزید پولیس فورس کو بلا لیا گیا ہے۔ اب خبر کنداپور سے۔ 3 سال قبل پیش آئے قتل واردات کے مقدمے کی سنوائی کے بعد آج عدالت کی جانب سے ملزم کو پھانسی کی سزا سنائے جانے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق ملزم پرشانت موگر سال 2015 کو اپریل کے مہینے میں قریب 4:30 بجے شام کوٹیشور کے قریب واقع گھر میں آنند نامی شخص کی بیوی جو کہ حاملہ تھی اس پر حملہ کرتے ہوئے گھر میں موجود نقد رقم اور زیورات لے کر فرار ہو گیا تھا، اور اس بیچ حاملہ خاتون مردہ پائی گئی تھی اور اس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جملہ 23 گواہوں کی گواہی سننے کے بعد اور ان کے بیانات سننے کے بعد کنداپور سیشن عدالت کے جج پرکاش کھنڈیری نے کل ملزم کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ کنداپور کی تاریخ میں یہ دوسری بار کسی ملزم کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اب خبر نئی دہلی سے۔
मुल्क में दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम अक़लियत पर हो रहे मुसलसल मज़ालिम और नाइंसाफ़ी के तनाजुर में कल जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतिमाम मदनी हाल बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग नई दिल्ली में मुल्क दो राहे पर और आगे का रास्ता के उन्वान से एक अहम इज्तिमा मुनाकिद हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए हयात से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद नामवर शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मुश्तरका तौर से मुल्क में पैदाशुदा अजीब व गरीब हालात और दस्तूर को दरपेश खतरात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसके खिलाफ SC, ST, OBC, आदिवासी और अक़लियतों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका महाज कायम करने पर जोर दिया। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने इज्तिमा की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक बात पर सभी हज़रात का इत्तिफाक है कि मुल्क के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं और हिकमत अमल इस बात की मुतकाज़ी है कि हम सब मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ मजहब और ज़ात की बुनियाद पर हो रहे हमलों तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क की मईशत, किसानों की खुदकशी और नौजवानों की बेरोजगारी ने हालात मजीद अबतर कर दिए हैं। इस मौके पर आगे का हल निकालने के लिए एक कवर कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें स्वामी अग्निवेश, श्री प्रकाश अंबेडकर, सुरेश खेरनार, प्रोफेसर कच्चा लैया, निथन चौधरी, राकेश बहादुर, हरीश मंदिर और कुर्बान अली को शामिल किया गया। इस कमेटी ने अलहिदा मीटिंग करके एक ड्राफ्ट पेश किया, जिसमें एक्शन प्लान के तहत कहा गया है कि हर हाल में दस्तूर की हिफाजत की जाए और उसके लिए दस्तूर बचाओ तहरीक छेड़ी जाए, जिसका एक नारा हो भारत देश सबका, हर हाल में भारत देश सबका देश। इस तहरीक में तमाम पसमानदा तबकात मसलन SC, ST, OBC, आदिवासी और अक़लियतों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। तजवीज़ में एक अलहिदा ग्रुप बनाकर तहरीक चलाने की भी बात की गई। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी ने कहा कि हर हुकूमत दस्तूर की पाबंद होती है। हम लोग मौजूदा हुकूमत की मजम्मत करके या बेताल्लुक होकर अलग हो जाए, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें सरकार के रवैये को भी बेनकाब करना होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे बात भी करनी चाहिए। ठोस इक़दाम पर रोशनी डालते हुए मशहूर दलित रहनुमा प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि मुल्क में दस्तूर बचाने की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ मुल्क में ज़ाती आज़ादी खतरे में है, ये हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए फासिस्ट ताकतों को हराने का एजेंडा होना चाहिए। कोई भी अपनी आज़ादी खोने को तैयार नहीं, बस मसला है कि हम लोग ऐसे तबकात की ताकत कैसे बने, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी के बागी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने मुबैना तौर पर बुध को कहा कि भगवा पार्टी पंजाब नेशनल बैंक घपले से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए दिल्ली चीफ सेक्रेटरी मामले को तूल दे रही है। सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा है कि आप मेंबरान असेंबली के जरिए मुबैना तौर पर चीफ सेक्रेटरी पर हमला और हल्ला बोल का वाविला, क्या यह सब शर्मनाक PNB घपला और नेहरू मोदी मुल्क से फरार हो जाने के मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश नहीं है? एक बात जो मैं वसूख से कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक मुहज़्ज़ब और ईमानदार आदमी है। दिल्ली चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश ने इल्ज़ाम लगाया कि आपके मेंबरान असेंबली ने इश्तिहारी मुहिम में ताख़िर होने की वजह से वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के जरिए तलब की गई मीटिंग में उन पर हमला किया, जबकि आप और दिल्ली हुकूमत का कहना है कि मीटिंग आधार लिंक की वजह से राशन की तकसीम में हो रही ताख़ीर और इस सिलसिले में आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात के मामले में बुलाई गई थी। 1300 करोड़ रुपए के PNB घपला, जिसमें अरबपति हीरों का ताजिर नेहरू मोदी मुलजिम है, हुकूमत इसका दिफा करने की कोशिश कर रही है। मोदी हुकूमत का कहना है कि एक घपला साबिका सरकार में हुआ था और उन्होंने इसका इंकिशाफ किया है। CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और महकमे इनकम टैक्स के अलावा दीगर खुफिया एजेंसियों ने इस घपले की जड़ तक पहुंचने के लिए तफ्तीशी कार्रवाइयां तेज कर दी है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी और मारपीट के मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है। मामले में देवली से आप अरकान असेंबली प्रकाश जरवाल को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ओखला से आप MLA अमानतुल्लाह खान ने खुद स्पुर्दगी कर दी है। इस दरमियान चीफ सेक्रेटरी की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट में उनके चेहरे पर कटने के निशान मिले हैं, जबकि कंधे पर चोट के निशान भी हैं। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मुबैना तौर पर बदसलूकी के मामले में बुध को CM केजरीवाल के सलाहकार VK जैन को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस 10 अरकान असेंबली से पूछताछ कर सकती है। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी और मारपीट के मामले में पुलिस की जांच तहकीकात जारी है। वाज़ेह हो कि जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी का मामला पेश आया, उस वक्त ये सभी अरकान असेंबली मौके पर मौजूद थे। अब खबर पटना से।
बिहार की राजधानी पटना में मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों के जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग समेत कई तरह के कोर्सेज की मुबैना फर्जी डिग्रियों के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस जराये ने आज यहां बताया कि पटना के खाजापुरा में वाक़ रॉयल इंस्टीट्यूट में छापामारी की गई। इस इंस्टीट्यूट में मुल्क की कई निजी यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां देने का पर्दाफाश हुआ है। इस इदारे के जरिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से मेडिकल इंजीनियरिंग, बीएड समेत कई दीगर कोर्सेज की डिग्रियां घर बैठे दिए जाने की शिकायत पर छापे मारे गए थे। मामला रोशनी में आने के बाद पटना पुलिस की खुसूसी टीम राजधानी पटना के दूसरे इलाकों में छापा मार रही है। दूसरी तरफ निजी इदारा का दावा है कि इंस्टीट्यूट के जरिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जारी की गई डिग्रियां जाली नहीं है और उनका इल्हाक यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में भी है। इस बात का भी खदशा है कि इन डिग्रियों को देने में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद यूनिवर्सिटियों के मुलाजिमीन और अफसरान शामिल हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इश्तियाक अहमद ने फर्जी डिग्री के इल्जाम से इनकार करते हुए कहा कि वो अलग अलग यूनिवर्सिटियों की तालीमी इदारों की निगहदाश्त में सेंटर चलाते हैं। वहीं पूरे मामलात के सामने आने के बाद बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इसके लिए नीतीश हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि नीतीश हुकूमत फर्जी डिग्रियों की मंडी है। आप 20,000 से लेकर 4 लाख तक में IIT से लेकर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री, बीएड, MBA और BMA तक की कोई भी डिग्री खरीद सकते हैं। ETV न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन फर्जी डिग्रियों की इस गोरख धंधे से इस बात की पर्दाफाश किया गया था। अब खबर धनबाद से। झारखंड के धनबाद जिले में एक मां ने अपने बीमार बेटे का इलाज कराने के लिए अपने दूसरे 2.5 महीने के बेटे को बेच दिया है। मामला धनबाद के बैंक मोड़ थाने के तहत वासेपुर का है। वासेपुर मारूफगंज की रहने वाली हिना परवीन को अपने 6 साल बेटे के इलाज के लिए 15,000 रुपए की जरूरत थी। हिना परवीन और उसका शौहर इस रकम का बंदोबस्त नहीं कर पाए। उसके बाद जावेद नामी एक शख्स ने उन्हें अपने 2.5 माह के बेटे को फरोख्त करने की पेशकश की। पहले तो हिना परवीन ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया, लेकिन आखिर में हिना ने जावेद की पेशकश को कबूल कर लिया और बिहार के गया जिले के एक लावलद जोड़े को 20,000 रुपए में अपने बेटे को बेच दिया। गोद लेने वाले जोड़े ने स्टाम्प पेपर्स पर दस्तखत करके बच्चे को ले लिया और उसे लेकर गया जिले वापस चले गए। लेकिन अब हिना की ममता फिर जाग उठी है और वो अब अपने बेटे को पाने की फरियाद लगा रही है। हिना परवीन ने बताया कि उसने एक जगह से लोन लिया है, जिसकी एवज में वो पैसे अदा करके अपने बेटे को वापस हासिल करना चाहती है। अगर उसे 20,000 रुपए की जगह 25,000 रुपए भी देना पड़े तो वो उसे देने के लिए तैयार है। हिना ने कहा कि अब वो किसी भी सूरत में अपने बेटे को वापस लेना चाहती है। इसकी गुहार लगाते हुए खातून धनबाद अदालत में पहुंची और वकील से सलाह मशवरे किए। हिंदुस्तान में मुस्लिम खानदान को बच्चा गोद लेने की इजाजत कानून नहीं देता है और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी इजाजत देता है। ऐसी सूरत हाल में अगर चाइल्ड लाइन इस मामले को संजीदगी से ले तो खातून को अपना बेटा वापस मिल सकता है। हिना ने एतराफ किया कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कहती है कि अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। अब खबर लातूर से। तलाक सलासा पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक मरकजी हुकूमत के मुजव्वजा बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाज किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर पूरे मुल्क में इन दिनों एक तहरीक चलाई जा रही है। इसी तहरीक के तहत महाराष्ट्र के लातूर में भी एक जबरदस्त एहतिजाजी जलसे का एहतिमाम किया गया। जलसे में हजारों की तादाद में खवातीन ने शरीक होकर मरकजी हुकूमत को पैगाम देने की कोशिश की कि शरीयत में मुदाखलत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम खवातीन की हमदर्दी के नाम पर लाए जा रहे बिल को मुसलमानों की शरई मामलात में मुदाखलत से ताबीर किया गया। 3 तलाक पर पाबंदी के बिल में पाई जाने वाली खामियों को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। जलसे में शरीक खवातीन की रहनुमाई के लिए शहर के उलमा इकराम मौजूद थे। जलसे के इख्तिताम के बाद जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मरकजी हुकूमत से 3 तलाक पर पाबंदी के बिल को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह है कि हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद वली रहमानी ने एक मकतूब के जरिए मुल्क के मुसलमानों से अपील की थी कि 3 तलाक पर पाबंदी के बिल के खिलाफ खवातीन की एहतिजाजी रैलियां और धरने मुनज़्ज़म किए जाएं। एक और खबर राजधानी से है। केरला की मुतनाज़ हादिया शाफ़ी निकाह मामले में अखिला अशोकन यानी इस्लामी नाम हादिया ने सुप्रीम कोर्ट में कल एक बार फिर कहा है कि वो अपने शौहर शाफ़ी जहां से साथ ही रहना चाहती हैं। हादिया ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सदारत वाली बेंच के सामने हलफनामा दायर करके कहा कि वो मुस्लिम है और मुस्लिम ही रहना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती हैं, जिनके साथ उसने अपनी मर्जी से शादी की और अपना मजहब बदलकर इस्लाम कबूल किया। सुप्रीम कोर्ट 22 फरवरी को मामले पर समाअत करेगा। डॉक्टर हादिया ने कहा कि इसने अपनी मर्जी और बगैर किसी दबाव के इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने कहा कि अभी इसको आज़ादी नहीं मिली, जबकि वो आज़ादी की हकदार है। अभी वो पुलिस की निगरानी में है। हादिया ने अदालत से अपनी आज़ादी बहाल करने की दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल हादिया ने मजहब इस्लाम अपनाते हुए शाफ़ी जहां से निकाह कर लिया था।
جس کے بعد لڑکی کے والد اشوکن کے یم نے اس معاملے میں عدالت میں فریاد کی تھی۔ کیرل ہائی کورٹ نے اسے لو جہاد کا معاملہ قرار دیتے ہوئے شادی کو منسوخ کر دیا تھا، جس کے بعد شافعی جہاں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا تھا۔ گزشتہ 30 برسوں سے مولانا شفیق الرحمان ندوی صاحب کے زیر انتظام و زیر اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمانوں کی بے لوث اور پرخلوص خدمات انجام دینے والا منفرد اور قابل اعتماد رجسٹرڈ حج و عمرہ ٹور ادارہ بیت اللہ ٹورز انٹرنیشنل، مذکورہ ادارے یعنی بیت اللہ ٹورز انٹرنیشنل سے خدمات حاصل کرنے اور تفصیلات حاصل کرنے اور مولانا شفیق الرحمان ندوی صاحب سے رابطہ کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے نمبرات پر رابطہ کریں۔ نمبرات اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر نئی دہلی سے، سپریم کورٹ نے ملیالم اداکارہ پریا پرکاش واریئر کو راحت دیتے ہوئے فلم اورو ادارلو کے متنازع نغمہ مانیکیا ملرائے پووی معاملے پر اس کے خلاف درج تمام مجرمانہ مقدموں پر آج روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا، جسٹس ایم خانولکر اور جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی بینچ نے پریا پرکاش اور فلم کے ڈائریکٹر عمر عبدالوہاب کے خلاف درج مجرمانہ مقدمے پر اگلے حکم تک روک لگا دی۔ عدالت نے اس معاملے میں تلنگانہ اور مہاراشٹر حکومت کو نوٹس بھی جاری کیے۔ عدالت نے واضح کیا کہ دیگر ریاستوں کو مذکورہ گانے کو بنیاد بنا کر CRPC کی دفعہ 200 کے تحت دائر شکایت پر عمل نہ کیا جائے۔ فلم کے اس نغمے کو لے کر حیدرآباد کے تاجر ظہیر علی خان، انجینئرنگ کے طالب علم مقید خان اور کچھ دوسرے لوگوں نے حیدرآباد کے فلک نما پیلس کے پاس FIR درج کرائی تھی۔ شکایت میں کہا گیا تھا کہ نغمے کی دھن میں جس طرح پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ اس گانے سے مسلم فرقے کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اس پر پابندی عائد کیا جانا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ پریا مانیکیا ملرائے پووی گانے کی 26 سیکنڈ کی کلپ کی وجہ سے انٹرنیٹ پر سنسنی بن گئی تھی۔ اس میں وہ اپنے کو اسٹار کو آنکھوں سے زخمی کرتی نظر آئی تھی، اسی وجہ سے ان کو راتوں رات شہرت بھی مل گئی تھی۔ اس گانے کی وجہ سے پریا کو بالی ووڈ سے بھی فلم کی پیشکش آنے شروع ہو گئے۔ قابل ذکر ہے کہ پریا مانیکیا ملرائے پووی گانے کی 26 سیکنڈ کی کلپ کی وجہ سے انٹرنیٹ میں بہت ہی مشہور ہو گئی تھی۔ آنکھوں کی تکلیف اور بینائی سے پریشان احباب کے لیے خوشخبری، CDI کیئر سینٹر کے نام سے نئے اسپتال کا آغاز بنگلور میں ہو چکا ہے۔ بہترین سہولیات کے ساتھ، نئے سیٹ اپ کے ساتھ اچھی طبی امداد پہنچائی جائے گی۔ ڈاکٹر عائشہ نازلین سے اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب خبر اورنگ آباد سے، مالیگاؤں بم دھماکہ معاملے میں عدالت سے رہائی پانے والی سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر نے اورنگ آباد میں ایک اور متنازع بیان دے دیا ہے۔ اپنے خطاب میں سادھوی نے ممبئی کے دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے پولیس افسران کو شہید ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں دہشت گردوں کی صف میں بھی لے جا کر کھڑا کر دیا۔ سادھوی نے اس موقع پر ہندوؤں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ زیادہ خوش نہیں کر سکتے تو بس بچے پیدا کرو، ان کی ہم پرورش کر لیں گے۔ مالیگاؤں بم دھماکہ معاملے میں گرفتاری کے بعد سے سرخیوں میں آئی سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر ان دنوں جیل سے باہر ہیں اور ایک نجی پروگرام میں شرکت کی غرض سے اورنگ آباد پہنچی تھی۔ پروگرام میں ہزاروں افراد کی موجودگی میں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ ہمیں مشنری اور مدرسوں کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں ہندوستان چاہیے اور ہندوستان کی تعمیر کے لیے ہندوؤں کو زیادہ بچے پیدا کرنے ہوں گے۔ اب خبر شکاگو سے، امریکہ میں ABC نیوز ویب سائٹ نے ایک 28 سالہ شخص کی ویڈیو نشر کی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ اس نے شکاگو میں ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں خود کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص ڈیوڈ فرجسن کو تھرڈ ڈگری کے جلنے کے زخم آئے ہیں۔ اسے عملہ کے عامہ کو آگ لگانے اور پولیس جنرل ٹرانسپورٹ کے اہلکاروں پر حملے کے الزامات کا سامنا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈیوڈ نے پہلے تو ٹرین میں ایک 26 سالہ خاتون پر چیچے سے کیمیائی مواد چھڑکا اور پھر خود کو اور اپنے اطراف موجود ٹرین کی نشستوں کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ گزشتہ ماہ 18 جنوری بروز جمعرات شام 5:18 بجے پیش آیا، تاہم اس کی ویڈیو آج 21 فروری کو منظر عام پر آئی ہے۔ اب خبر اندلس سے، اسلامی تاریخ میں اندلس کی فتح کے مرکزی کردار طارق بن زیاد کی شخصیت پر اسرار پہلوؤں سے بھرپور ہے۔ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سی کہانیاں اور داستانیں موجود ہیں۔ طارق کی شخصیت کے ساتھ ابتدائی طور پر جو کارنامہ مربوط ہوا
वो अरबों का ममलिकत फ्रांकिया में दाखिले का ख्वाब पूरा होना है। मुसलमानों ने 8वीं सदी ईस्वी के अवाइल से 15वीं सदी ईस्वी 1492 ईस्वी तक तकरीबन 800 बरस वहां अपनी हुक्मरानी का सिक्का चलाया। तारिक बिन जियाद को उमवी खलीफा वलीद बिन मलिक अब्दुल मलिक के दौर में मराकश में मूसा बिन नसीर की फौज के कमांडर के तौर पर जाना गया है। अपने कायदाना सलाहियतों के सबब वो जल्द ही नजरों में आ गए और उन्हें तंजा शहर का गवर्नर बना दिया गया। अलबत्ता तारिक की शोहरत का बुनियादी सबब उंदलुस और उसकी फतह से कब्ल निगरानी की कार्रवाइयां हैं। इनके नाम से मौसूम जबल तारिक यानी जबराल्टर आज भी तारीख की इस अजीम सिपह सालार की गवाही देता है। तारिक बिन जियाद 675 ईस्वी 55 हिजरी में अलजायर के मगरिबी सूबे दहरान में पैदा हुए। जिंदगी की 45 बहाने देखने के बाद 720 ईस्वी यानी 101 हिजरी में वफात पा गए। तारिक बिन जियाद तवील कद्दो-कामत के मालिक थे। उनकी नस्ल से मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायतें पाई जाती हैं। पहली रिवायत उनको अफ्रीकी बर्बर कबीले से जोड़ती हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक उनका ताल्लुक ईरान के सूबे हमदान से था। तीसरी और आखिरी रिवायत कहती है कि उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक यमन के इलाके हजरमौत से था। तारिक बिन जियाद के नसब की तरह उनकी जिंदगी का इख्तिताम भी पुरअसरारियत के पर्दों में दबा हुआ है। मशहूर यह है कि तारिक मूसा बिन नसीर के साथ दिमश्क लौट आए थे, जिसका सबब दोनों के दरमियान इख्तिलाफ था। आखिरकार खलीफा अल वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दोनों को माजूल कर दिया। कहा जाता है कि जिंदगी के आखिरी अय्याम तारिक ने कसम पुरसी में गुजारे, बल्कि यहाँ तक कि उन्हें मसाजिद के बाहर सवाल करते हुए देखा गया। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर उसे उमवी सल्तनत के उस अजीम सिपह सालार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कहा जाएगा। मूसा बिन नसीर के तारिक बिन जियाद के साथ ताल्लुकात शूरिश का शिकार रहे। मूसा ने तारिक के जरिए मराकश में कामयाबियां समेटी और फिर तारिक को बुलंदी की तरफ जाता हुआ देखकर हसद महसूस करने लगा। बादजा इस कहानी ने अफसानवी सूरत इख्तियार कर ली और दोनों के दरमियान इख्तिलाफ का सबब कीमती पत्थरों से मुरस्सा सोने का एक मेज पोश करार दिया, जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता था। तारिक ने जंगों के दौरान उसे हासिल किया था और आखिरकार वो खलीफे के महल की जीनत बन गया। आज की आखिरी खबर शाम से है। गुज़िश्ता 7 साल से जारी खाना जंगी ने मुल्क शाम को बर्बाद करके रख दिया है। इस बर्बादी के कई पहलू हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक उन बेशुमार शामी खवातीन से है जो शादी की तमन्ना दिल में लिए बैठी हैं, लेकिन अब उनके साथ शादी करने वाला कोई नहीं बचा है। खबर के मुताबिक एक तालिबा नूर ने शामी खवातीन की इस अलमिये के मुतालिक बात करते हुए बताया है कि उन्होंने दिमश्क यूनिवर्सिटी में अपने साथी तलबा और तालिबात के बारे में सोशल मीडिया पर तलाश की तो खवातीन का एक समंदर नजर आया, लेकिन दूर दूर तक किसी नौजवान का जिक्र तक नहीं था। नूर का कहना है कि उनकी उम्र 30 साल हो चुकी है और वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन किसी मुनासिब नौजवान की तलाश उनके लिए तकरीबन नामुमकिन बन चुकी है। शामी नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जंग में अपनी जान गंवा बैठे हैं और जो बाकी बच्चे वो शाम को छोड़कर दूसरे ममालिक चले गए हैं। नूर ने इस अफसोसनाक सूरत हाल के मुतालिक मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन शादी की अंगूठी मेरी उंगली की जीनत बनेगी, लेकिन अब यहाँ नौजवान ना होने के बराबर है। वो बताती हैं कि इन दिनों आए रोज उनके लिए किसी का रिश्ता आया होता था, अब उधेड़ उम्र और पहले से शादीशुदा मर्दों के सिवा किसी को ढूंढना मुश्किल हो चुका है। नूर का कहना है कि उन्होंने वक्त गुजारी के लिए फिर से यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और अदब के मजमून में मजीद तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मेरी कोई दोस्त नहीं है, कोई महबूब नहीं है, लिहाजा मैं अपना वक्त गुजारने के लिए और क्या कर सकती। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि शादी के इंतजार में मेरी जवानी गुजर जाएगी और बाल सफेद हो जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अब अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा